Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. I am Sapna Jha, a teacher by profession, and I've started a series where I will be uploading some content related to teaching not only for my students but for the educators as well, new plus old, everybody. Now let's jump to the video. In this video, I'm going to let you why you should not become a teacher in 2026. Here are a few. I have already noted down some of the reasons that you should not become a teacher if ओके एंड सच बताऊं तो ये फील मत करना कि कोई प्रोफेशनल लड़की टिप दे रही है, भाई नहीं दे रही है. जस्ट टेक इट एज अ फ्रेंड एडवाइस जो कैमरे के थ्रू आपसे बात करना चाहती है. सो प्लीज वॉच or do share this video with somebody who is planning to become a teacher or somebody who has recently joined a school or maybe anybody whose future goal is to become a teacher. See, before I tell you some tips, it's important to know कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है कि मैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इतनी कॉन्फिडेंटली बात करूंगी. आई एम इन दिस एजुकेशन सेक्टर फॉर मोर देन, वैसे तो मैंने ट्यूटरिंग 10th क्लास से स्टार्ट कर ली है, सो यू कैन अंडरस्टैंड. लाइक मैंने 15 में 12th पास की, तो उससे 2 साल पहले मैंने 13 और 12 से, तो मैं तब से ट्यूशन पढ़ा रही थी, ठीक है. बट देन लेटर आई जॉइंड वन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वर्कड ऑन अ बिगर ग्राउंड वेयर आई not only taught but also dealt with so many teenagers, n number of teenagers. And now currently I'm working in a school as a TGT English. I feel proud, which means कि मैं इस टॉपिक पे बात तभी कर रही हूँ जब मेरे पास कुछ लंबी जर्नी का एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन लाइन. इट्स नॉट ओनली स्कूल बट ऑफ कोर्स इन एजुकेशन लाइन, एंड अब स्कूल का भी आई हैव गॉट इनफ एक्सपीरियंस, सो यस आई कैन टॉक अबाउट इट. सो लेट्स जंप टू द पॉइंट्स. Point number 1, do not become a teacher if you think it's an easy job. Let me tell you, girls and boys, it's not easy at all. I fail every day to make my family understand when they think that it's just a half day job. You come back, you're home by 3 o'clock and then तो free तो है, तो तू खाना बना लिया करना, तू ये कर लिया कर, तू वो कर लिया कर. It's so much of that. Even my friends when they say कि तेरा सही है या तू हाफ डे में आ जाती है, I am not able to make them understand because they will not be able to relate with me ever. But if you are planning to become a teacher, you must know कि ये easy job नहीं है. बहुत सारे challenges आएंगे. I mean बहुत सारे challenges आएंगे. There were days, there were times when I cried, literally tears वाला cry, because वो इतना tough हो गया था. Tough in the sense of sometimes students, sometimes the politics, sometimes the overburden of work, sometimes that I am giving my heart and soul, everything to this job, but it's not giving me anything in return. Sometimes it could be the financial reason that you are not getting the enough income. So सबसे पहली चीज, अगर आप टीचर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई सही है ना, 3 बजे तो घर ही आ जाना है ना, तो हाफ डे की जॉब हो जाएगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी. तो पॉइंट नंबर 1, आप कभी टीचर ये सोच के मत बनना कि सबसे आसान, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बीएड की डिग्री कर ली, टीचर बन जाते हैं. Nobody told me this, but I'm telling you this, girls and boys. Now point number 2, you should not become a teacher if you have no patience. If you are a short tempered person, ये जॉब आपके लिए नहीं है. I'm sorry for being harsh a little and for being direct, okay, because this job demands a lot of patience. आपको तब भी एक स्माइल रखना होगा अपने फेस पे जब आपका मन कर रहा हो कि सामने वाले की कोनी मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ दे, बट स्टिल यू विल लाइक ओके गॉट इट. बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे. आई स्वेयर जब मन करेगा कि एक पंच दे दो इसके, तो बस. लेकिन उस टाइम भी आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा. सो अगर आपको लगता है कि यार मुझसे ना पेशेंस हो ही नहीं सकता, लाइक मैं किसी की हड्डी तोड़े बिना तो रह ही नहीं सकता हूँ, टीचिंग इज नॉट फॉर यू. टीचिंग इज नॉट फॉर यू बिकॉज इट डज आस्क फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंस. पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टीचिंग के एस्पेक्ट में कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है. क्यों नहीं बात कर रहा, आई डोंट नो. आपने बहुत सुना होगा, लोगों कहते कि ये जनरेशन ऐसी, ये जनरेशन वैसी, आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे. अगर
बाय एनी चांस आप भी इस माइंडसेट के साथ इस फील्ड में आना चाहते हो, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप अपने एक नेगेटिव माइंड के साथ कि आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, आज की जनरेशन तो ऐसी ही है, ये करके प्लीज मत आना। क्योंकि आप आजकल के जनरेशन को, सबसे पहली बात तो आप आजकल की जनरेशन को जितना बुरा समझ रहे हो, इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, जनरेशन गैप थोड़ा सा होगा, फील होगा। इफ यू डोंट लाइक टीनेजर्स, इफ यू डोंट लाइक द करंट जनरेशन, टीचिंग इज नॉट फॉर यू, प्लीज स्टे अवे। आप कोई भी और जॉब ऑप्ट कर सकते हो, बट एक टीचिंग नहीं, क्योंकि करंट बैच, आने वाले बैचेस में हमारे बच्चे एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं आजकल के टाइम के साथ, आजकल के बच्चों के साथ, आजकल के जनरेशन के साथ कॉप अप नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, quit your decision of becoming a teacher. Even if you have joined this school this April, I'll suggest you to leave that. Because जब आप बड़े बच्चों को पढ़ाना, like I teach seniors, है ना, तो a lot times बहुत arguments होता है, different point of views होते हैं, बहुत different opinions होते हैं, which I always welcome. ठीक है, तो आप बैठिए, सोचिए कि क्या मुझे आजकल के बच्चे पसंद है। अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं भाई, मुझे आजकल के बच्चों का तो समझ ही नहीं आता है, बहुत एटीट्यूड है, बदतमीज हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, चीची मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। Okay, let's jump to point number 4 is please do not become a teacher if you believe in instant result. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया ना, तो तुम्हें समझ कैसे नहीं आया। अगर आप ये वाले हो कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर दिया ना, मैंने बोल दिया ना पेज नंबर 27 एवरीबॉडी, मैंने रिपोर्ट एक बार सेंड कर दी ना अपने सीनियर को, तो क्यों नहीं समझ आ रहा है किसी को। अगर आप ऐसे हो, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट दिखना चाहिए, let me again be very direct, teaching is not for you. Okay, result of your hard work may take years, and I really mean years to revert. तो आपको again point number 1 patience, अगर patience नहीं है, instant result चाहिए तो नहीं होगा। हो सकता है आपने ज्वाइन किया, यू स्पेंड 1 year, यू स्पेंड 6 months, यू स्पेंड सम सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स, एंड फिर भी आपकी बॉन्डिंग बच्चों से नहीं हो पाई है, फिर भी आपने जो पढ़ाया वो सारे बच्चे उस चीज को एक बार में फटाक से अडेप्ट नहीं कर पाए। जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, पॉसिबली की रिजल्ट जब आंसर शीट आप चेक करो तो आप ये सोचो कि भाई ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। और अगर आप ऐसे वाले हो कि बिलीव करते हो कि मैंने मेहनत कर ली और मुझे रिजल्ट दिख जाएगा तुरंत के तुरंत, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिमिलर टू यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहते हो एंड यू थिंक कि मैंने एक वीडियो डाली और मेरे मिलियन में व्यूज आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो भाई मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल वीडियोस डालनी पड़े, उसमें से एक वीडियो चल गई तो आपका करियर, मतलब यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन आगे जर्नी बढ़ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स के साथ भी, टीचिंग प्रोफेशन में भी ऐसा ही होता है कि इट्स नॉट कि आपने एक बार मेहनत कर ली और इंस्टेंट रिजल्ट आ गया। नंबर 5, डू नॉट बिकम अ टीचर इफ यू आर नॉट ओपन टू लर्निंग फॉर योरसेल्फ। लेट मी टेल यू एवरीबॉडी दैट देयर इज नो फिक्स्ड एज। इस एज के बाद ना लर्निंग आप कर ही नहीं सकते। इस एज के बाद ना आप सर्टन एक्सपीरियंस होल्ड कर लिया होगा, तो अब उससे आगे कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर बिकमिंग अ टीचर बिकॉज यू डू हैव सम सर्टन डिग्रीज, यू हैव सम सर्टन क्वालिफिकेशन, सर्टन एक्सपीरियंस, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके लिए लर्निंग का स्टेज वहां पे खत्म हो गया है। इन पिछले 3 सालों में सिर्फ मैं अगर स्कूल जर्नी की बात करूं, मैंने बहुत ही कुछ सीखा है। लेट मी जस्ट गिव यू अ बेसिक एग्जांपल यूजिंग इंटरैक्टिव पैनल। आई रिमेम्बर डे 1 ऑफ माई स्कूल व्हेन आई जॉइन, आई हैड नो क्लू कि उसको ऑन कैसे करना, लाइक स्विच ऑन कैसे करना है, बट आई वेलकम्ड, आई let my students know and they were too helpful and now I have become a kind of expert in using interactive panel. So yes, अगर आपको लगता है कि आप नए सीखने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, या अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है या आपको कोई गाइड कर रहा है, या आप मतलब समझ रहे हो, आपको फीडबैक दे रहा है और वो चीज़ें आप सीखना नहीं चाहते हो कि मुझे कैसे कोई बता सकता है। Point number 6 and one of the most important points, that please do not become a teacher if you take everything too personally, bro. अगर आपको हर छोटी बात ना दिल पे लगती है और आप बहुत इमोशनल हो, तो ये जॉब आपके लिए राइट फिट नहीं है। लेट मी टेल यू, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ,
मैं भी बहुत सारी चीजों को अपने दिल गुर्दे फेफड़े पे ले लेती हूँ, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो कि एक बाउंड्री रखो कि ये मेरी पर्सनल चीजें हो गई, ये मेरी प्रोफेशनल चीजें हो गई, और इन दोनों को मुझे मिक्स नहीं करना है। क्योंकि अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ओ डोंट यू नो इवन हाउ टू यूज अ पैनल, और इस चीज को मैंने इतना 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 पर्सनली ले लिया कि मैं फूट के रो रही हूँ, कि मैं बिल्कुल ही ट्रॉमा में जा चुकी हूँ, बिल्कुल मैं डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। अगर आप इतने लेवल के इमोशनल हो तो इट्स नॉट अ राइट फिट फॉर यू। सी इट्स बीन 3 years नाउ कि मैं स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ, एंड होता है हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता रहा होता है, चाहे वो बच्चे हैं या मेरे सीनियर्स हैं या मेरे को टीचर्स हैं, एंड आई वेलकम इट बाय जस्ट मेकिंग श्योर कि कितना मुझे एक्सेप्ट करना है, कितने को मुझे इधर से इधर निकाल देना है। तो वो है आपको स्मार्ट डिसीजन होना है। लास्ट पॉइंट फॉर द डे इज डू नॉट बिकम अ टीचर इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इनविजिबल वर्क। भाई साहब, आप अपना टू डू लिस्ट बनाकर गए हो कि आपको ये 4 काम करने हैं आज। There would be days, most of the days, जो ये 4 काम तो पूरे नहीं हुए हैं और उसमें 4 और ऐड हो चुके हैं by the end of the day। तो आपके पास बहुत सारे इनविजिबल काम जो कि आपको लगता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो होगा नहीं, वो कहीं से भी कभी भी उठ के आ सकता है। सो इफ यू आर नॉट दैट मल्टीटास्किंग, इफ यू आर नॉट दैट स्मार्ट इनफ, if you are not able to cope up with all that, then I guess you should sit and think about this. So there were a few realities of this job. I'll end the video by saying, bro, I am a proud teacher. मैंने जितने भी points बताए हैं, I didn't mean to demotivate you, but I just wanted to highlight that teaching is not just a profession you choose for your comfort. It's a responsibility you choose for impact. Okay, that's it for the day. And please don't think I was flexing my मेहंदी. By girls can relate कि जब हमारे nail extension होते हैं, मेहंदी होती है, तो हमारे हाथ automatically कुछ extra ही active हो जाते हैं. So similar it has happened. Do subscribe to my channel to watch such teaching content, and where we are going to have like a friend talk. Okay, that's it for the day. Bye.